Chapter 5 Medieval Architecture. In this chapter, we will learn about features of medieval architecture, architecture during the Delhi Sultanate, architecture during the Mughal period, how swords are used to, and reconstruct history. Based on their function, historical monuments can be divided into religious and secular buildings. Religious buildings include temples, mosques, and prayer halls. On the other hand, secular buildings include forts, palaces, valleys, and havelis. Irrespective of their type, historical monuments provide valuable information to reconstruct history. मध्यकालीन भारत के शासकों के कार्यों के अनुसार स्मारकों को धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष इमारतों में विभाजित किया जा सकता है। धार्मिक इमारतों में मंदिर, मस्जिद और प्रार्थना स्थल शामिल हैं। दूसरी ओर धर्मनिरपेक्ष इमारतों में किलों, महल, बावली और हवेलियां भी शामिल हैं। उनके प्रकार के बावजूद ऐतिहासिक स्मारक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। भारत में मध्ययुगीन काल के दौरान विकसित वास्तुकला प्रतिबिंबित करती है विविधता। तुर्की के आक्रमण ने भारत के मौजूदा स्थापत्य शैली में नए तत्व जोड़े। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को जन्म दिया जो इंडो इस्लामिक विशेषताओं का एक संलयन था। Next topic is features of early medieval architecture. Buildings constructed during the early medieval period include the massive forts, palaces, temples, towers, havelis, balis, and many other magnificent structures. The temples during this period were constructed in three primary styles of architecture: Nagara, द्रविदा एंड वैसरा। यानी कि इस टाइम की जो वास्तुकला थी वो प्रमुख 3 भागों में बटी हुई थी। पहला था नगरा, दूसरा द्रविड़ एंड तीसरा वैसरा। फर्स्ट इज Nagara style. The Nagara style architecture has its origin in the structural temples built during the Gupta period. It was a popular form of architecture in North India. The temples built in Nagara style consist of 2 buildings, the main shrine, which is taller, and adjoining shorter one, or the mandapa. The shape of the shikhara top parts is the main difference between the 2 buildings structure. गुप्त काल के दौरान निर्मित संरचनात्मक मंदिरों में नागर शैली की वास्तुकला की उत्पत्ति हुई। उत्तर भारत में वास्तुकला का एक लोकप्रिय रूप था। नागर शैली में बने मंदिरों परिधि 2 भवनों मुख्य मंदिर जो मंदिरों से ऊंचे हैं और एक छोटे से समीप या पिरामिड आकार मंडप हैं। शिखर यानी कि शीर्ष भाग का आकार दोनों के बीच मुख्य अंतर है, जैसा कि आप लोग फिगर में या इमेजेस में देख सकते हैं जो कि आपके वीडियो में शो हो रहा है। Some of the temples of Khajuraho, such as the Parsvanatha temples, the Vishwanath temple, and the Kandariya Mahadev temple, were built in this style of architecture. यहाँ पे कुछ मंदिरों के नाम दिए गए हैं जो कि इस स्टाइल में बने हैं: पार्श्वनाथ, विश्वनाथ एंड केदारिया महादेव टेम्पल। ये तीनों जो हैं मेनली इस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। अदर एग्जांपल इंक्लूड लिंगराज एंड मुक्तेश्वरा टेम्पल इन भुवनेश्वर, द सन टेम्पल इन कोणार्क एंड जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे नगर स्टाइल के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द्रविड़ स्टाइल. The Dravid style of temple architecture developed in the 7th century mainly in southern India. The most common characteristics of this style is the pyramidal elevation of the tower. The temple of Dravidian architecture consisted of 4 main parts: Gopuram, gateway; Mandapa, pillared prayer hall; Garbhagriha, a square chamber where the image of the chief deity was kept; and the Pradakshina Path, circumambulatory passage. These temples also
features multi-story pyramid-shaped tower called vimans. The Dravidian style of temple became prominent during the reigns of Chola and Pallav dynasties. Some of the examples of Dravidian architecture include Shore Temple, Kailashnath Temple, Meenakshi Temple and the Rath Temple. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दूसरा स्टाइल है वो है द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल के बारे में यहाँ पे दिया गया है। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली 7वीं शताब्दी मुख्य रूप से दक्षिण भारत में विकसित हुई। इस शैली की सबसे आम विशेषता मीनार की पिरामिड ऊंचाई है। द्रविड़ वास्तुकला के मंदिरों में 4 मुख्य भाग गोपुरम, प्रवेश द्वार यानी कि मंडपा, स्थापित प्रार्थना कक्ष जहाँ पे प्रार्थना होती थी, गर्भगृह, एक चकोर कक्ष जहाँ मुख्य देवता की छवि रखी गई थी या रखी जाती है, और प्रदक्षिणा पथ, परिधि मार्ग शामिल थे। इन मंदिरों में बहुमंजिला पिरामिड के आकार के मीनारें भी दिखाई गईं जिन्हें विमान कहा जाता है। चोल और पल्लव राजवंश शासनकाल के दौरान मंदिर की द्रविड़ शैली प्रमुख हो गई। द्रविड़ वास्तुकला के कुछ उदाहरणों में से शोर मंदिर, कैलाश मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और रत्ना मंदिर शामिल हैं। The next topic is Vesra style. The Vesra style of architecture developed in the Deccan area. It was a hybrid style which combined the feature of both the Nagara and the Dravidian style of temple architecture. The Chalukya, Hoysal and Rashtrakutas constructed temple in this style of architecture. दक्कन में वेसरा वास्तुकला का विकास हुआ। यह एक संकर शैली थी। ये 2 स्टाइल का मिश्रण था, वो था नगरा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल, जिसने मंदिर की वास्तुकला की नागरा और द्रविड़ शैली दोनों को जोड़ दिया। चालुक्य, होयसाल और राष्ट्रकूट ने वास्तुकला की शैली में मंदिरों का निर्माण किया। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। द एडवांस of the Turk in the 13th century saw the beginning of Indo-Islamic architecture in India. This style of architecture borrows certain elements of the Indian architecture, such as courtyard surrounded by colonnades and the balconies with ornate brackets. The architectural style brought by the Turkish ruler include domes, arches, motifs, mosaics, mihrabs and minarets. Many of the foreign invaders originated from Central Asia and their influences were also reflected in this new form of architecture. Persian's influence can be seen in the tomb architecture of the medieval period. The Mughal introduced garden around the tomb. This was based on a Persian design where the garden was divided into 4 parts with the help of walkway of flowing water. Forts were another key feature of Mughal architecture. This period witnessed the construction of walled forts of safeguard against enemy attack. Indian influences can be seen in the construction of forts. For example, Akbar's fort at Agra show traces of the Indian influence from the Gujarat and Bengal region. Besides wall structures, magnificent forts and ornate designs were built, such as the Lahore forts that include the Sheesh Mahal and the नौलखा पैवेलियन। 13वीं शताब्दी में तुर्कों के आगमन ने भारत इस्लामी वास्तुकला का शुरुआत किया। वास्तुकला की इस शैली ने भारतीय वास्तुकला के कुछ तत्वों को उधार लिया, जैसे कि अलंकृत कोष्ठ के साथ कॉलोनी और बालकनियों से घिरे प्रांगण। तुर्की शासकों द्वारा लाई गई स्थापत्य शैली में गुंबद, मेहराब, आकृति मेहराब और मीनार शामिल हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के कई वास्तुशिल्प मध्य एशिया से उत्पन्न और उनके प्रभाव भी वास्तुकला के इस नए रूप के परिलक्षित हुए थे। मध्ययुगीन काल के मकबरे की वास्तुकला में फारसी प्रभाव देखा जा सकता है। मुगलों ने मकबरों के चारों ओर बगीचे लगाए। यह एक फारसी डिज़ाइन पर आधारित था, जहां उद्यान को पैदल मार्ग या बहते पानी की मदद से 4 भागों में विभाजित किया गया था। किले मुगल वास्तुकला की एक और प्रमुख विशेषता थी। यह पीरियड गवाह है
मतलब कि ये टाइम विटनेस्ड है कि दुश्मनों के हमलों के बचाव के लिए दीवारों के किलों को निर्माण देखा, यानी कि जो किलों की दीवारें थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती थी और वो एनिमी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई उस टाइम में। किलों के निर्माण में भारतीय प्रभाव देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आगरा में अकबर का किला गुजरात और बंगाल क्षेत्रों से भारतीय प्रभाव के निशान दिखाता है। चार दीवारी संरचनाओं के अलावा अलंकृत डिज़ाइन वाले शानदार किलों का निर्माण किया गया था, जैसे कि लाहौर का किला जिसमें शीश महल और नौलखा मंडप शामिल थे। Next topic is features of medieval architecture. The Indo-Islamic architecture of the Sultanate era had some distinct features. First, extensive use of arches, dome, beams and balconies, यानी कि यहाँ पे arches, dome, beam और balconies का यूज़ किया गया इस टाइम के आर्किटेक्चर्स में। Second, use of red stone, brick और stone covered with plaster as building material. Building material में sandstone और brick का ज़्यादा यूज़ किया गया। Third is decorative carving, floral and geometric patterns and use of calligraphy, the art of producing decorative handwriting. यानी कि कैलीग्राफी का, यानी कि जो लिखे जाते हैं दीवारों पे बहुत अच्छे से, तो उसका भी डेकोरेटिव पर्पस से यूज़ किया गया। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ एनग्रेविंग ऑफ कुरानिक वर्सेस ऑन द वॉल। इसमें वॉल में बहुत सारे कुरानिक वर्सेस भी यूज़ किए गए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्किटेक्चर इन द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला। द तुर्क ब्रॉट विथ दैम न्यू स्टाइल and technique in architecture. This merged with the traditional architectural style of Indian subcontinent, giving birth of the unique Indo-Islamic style. जो तुर्क थे इन्होंने एक और स्टाइल निकाला जो था इंडो इस्लामिक स्टाइल। न्यूमरस मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट फॉलोइंग दिस स्टाइल, और इस स्टाइल में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हैं, नॉट ओनली इन दिल्ली बट ऑल्सो इन रीजनल किंगडम। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं और भी बहुत सारे राज्यों में बने हुए हैं इस स्टाइल में मॉन्यूमेंट्स। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं बिल्ट ड्यूरिंग द सल्तनत एरा इंक्लूड द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जैसे कि आप लोगों ने देखा है इस स्टाइल में बना है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया। तुगलकाबाद फोर्ट गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक। बारह गुंबद सिकंदर लोदी एंड टॉम ऑफ सिकंदर लोदी इब्राहिम लोदी। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं इंडो इस्लामिक स्टाइल के हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ममलक और स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट 2 मॉस्कोज। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्होंने 2 मस्जिदों का निर्माण किया। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्को इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में है, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर। जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में है। ही ऑल्सो commissioned the construction of a tower dedicated to the famous Sufi saint Qutbuddin Bakhtiar Kaki. The tower, which is known as the Qutub Minar, was completed during the reign of इल्तुतमिश ऐबक successor. हमें सबको पता है कि जो कुतुब मीनार है वो उसको इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट इज खिलजीज। Alauddin Khilji's built a number of monuments during his reign. The most famous among them is the अलाई दरवाज़ा। जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, जिसमें से जो फेमस है वो है अलाई दरवाज़ा, अ गेट वे to the Qutub complex. He also built a madrasa and the unfinished tower Alai Minar. इन्होंने अलाई मीनार भी बनाया और मदरसा भी in that complex. The Shiri Fort, the Hauj Alai, a large tank built of the resident of Siri, and the Hazar Situr Palace of 1000 pillars. 1000 स्तंभों पे खड़ा हुआ है इनका हजार सितुर महल इन्होंने बनवाया। आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ खिलजी आर्किटेक्चर। ये सारे जो एग्जाम्पल्स जो मैं अभी दिए गए वो सारे खिलजी वास्तुकला के एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस रेस्ट पार्ट इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।